मैम आप स्टार्ट कर दीजिए। Good morning, students. We are discussing unit 2, जहाँ पर हमने contract of guarantee, contract of indemnity, contract of pledge, contract of agency ये सब cover कर लिया था. I have told you in the previous class कि अगर agency से कोई doubts है तो you can mail me or you can message me. मुझे कोई message नहीं आया, कोई mail नहीं आया. It means it is clear from your side. ठीक है, आप लोगों ने मैंने जो notes provide किया है in the Google Drive, you have gone through from all the notes and अभी तक आपके कोई doubts नहीं है. I am assuming that. ठीक है. Contract of agency में एक छोटा सा topic था the ratification का, which I think कि ये एक बार मैं clear कर दूँ थोड़ा, तो इसीलिए we will do first of all this contract of in the contract of agency, ये contract of ratification ये हम करेंगे. ठीक है. So we have already done this creation of agency, right? So in this we will go through with this ratification. Okay, agency by ratification. Before moving to this agency by ratification, let me give you an example first. ठीक है? We have already discussed in the contract of agency principal कौन होता है, agent कौन होता है. Principal को competent person होना बहुत compulsory है. Agent can be major or minor. ये एक principal और third party के बीच का contract है, but agent will act on the behalf of the principal. ठीक है? This all we have discussed. We have discussed also the types of agents, which is not given in your book, but you have to go through with that. What are who are special agent, who are general agent, universal agent, mercantile agent. We have discussed this in the previous class. So now it's time for the ratification. ठीक है? Ratification मतलब you already know, it means subsequent adoption or acceptance of an unauthorized act. We have discussed this ratification thing in Indian Contract Act, right? So ratification क्या होता है, कुछ भी आप previously कोई unauthorized act था उसको आप accept कर रहे हैं या adopt कर रहे हैं, that is your ratification. ठीक है. So ये agency by ratification क्या है? For example, एक X है जिसके पास एक प्रॉपर्टी है, he is a property owner. For example, गोवा में उसकी एक प्रॉपर्टी है. ठीक है. अब उसने एक इंसान को बोला, उसका दोस्त था Y, उसको बोला कि अच्छा आप गोवा में रहना चाहते हैं, वहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिला है, ठीक है, मेरा घर तो खाली पड़ा हुआ है, यू कैन यूज ऑल द रूम्स. ठीक है. तो उसके बदले उसने कोई पैसे नहीं लेने के लिए बोला या कुछ भी नहीं, बस ही इज गिविंग इट एज अ फ्रेंड काइंड ऑफ थिंग कि तो आप यूज कर लीजिए जब तक आप वहां पर जॉब कर रहे हैं. ठीक है. नथिंग इन एक्सचेंज ऑफ दैट. So after going there, Y what decided कि it has 4 big rooms. ठीक है. तो उसने सोचा मुझे तो बस एक ही रूम से काम हो जाएगा, remaining 3 rooms are not of my use. So what he do, he gave that 3 rooms on rent to Mr. Z for rupees 10,000 per month. ठीक है. उन तीनों रूम के लिए उसने Z को रेंट में दे दिया for 10,000 rupees per month. ठीक है. अब जब Z को उसने रेंट में दिया तो Z को क्या लगा कि Y is the owner, right, जो उसको रेंट में दे रहा है और he becomes the tenant. But after some time 2-3 months बाद क्या हुआ, ये जो प्रिंसिपल है, जो X है, वो बिना बोले Y के पास अपने प्रॉपर्टी के पास आया. ठीक है. प्रॉपर्टी देखने के लिए आया इन द गोवा. ठीक है. फिर उसने देखा कि ये Z एज अ टेनेंट उस घर में है. तो अब जो Y है उसने बोला कि मैं आपको 10,000 रुपीज एवरी मंथ जो ये देता है मैं आपको वापस कर दूंगा. ठीक है. सो what he acted as a pretendant agent. ठीक है. जो प्रिंसिपल है, जो X है, उसने उसको अपॉइंट नहीं किया था. The Y acted as a pretendant agent although he is not X agent. ठीक है. अब X has 2 options. ठीक है. अब X में approve, that is he can ratify the act of Y. अब ratification can be 2 type, मतलब ratification हो सकता है या फिर not ratify. मतलब ये जो Y ने सब कुछ जो किया, उसने रेंट पे दे दिया without his permission, he acted as a pretendant agent, ये all these things जो उसने किया, ये जो X है ये approve कर सकता है, that is he can ratify or he cannot ratify. If he ratify मतलब क्या, he will agree the rent agreement and the rent agreement will becomes valid. ठीक है. और अगर ये रैटिफिकेशन उसने माना नहीं, उसने बोला कि Z आप इस घर से निकल जाइए because I have not given you on a rent, so I don't
appointed Y as my agent, so Y can't be my pretended agent also. So if X does not ratify, then Y has to compensate for all the loss incurred by Z. Z इस प्रॉपर्टी में आने के लिए उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुआ या फिर दूसरी रेंट के लिए प्रॉपर्टी देखने के लिए उसको जो कॉस्ट इंकर होगा, all this cost, all this loss have to bear by whom? By the pretended agent. ठीक है? So this is the example of ratification. Let's move to the book. When a person acts on the behalf of another without his knowledge or authority, he may elect to disown the act or adopt. यहाँ पर X के पास ये नॉलेज नहीं था और X ने ये अथॉरिटी भी नहीं दी थी Y को टू बी अ प्रिटेंडेंट एजेंट और बी एज अ एजेंट. ठीक है? सो नाउ X हैज द ऑप्शन टू डिसओन द एक्ट और टू अडॉप्ट इट. ठीक है? बट इफ ही इलेक्ट्स टू अडॉप्ट इट, इट इज कॉल्ड रैटिफिकेशन. अगर उसने अडॉप्ट किया, उसने ये रेंट एग्रीमेंट माना, तो दैट इज रैटिफिकेशन. ओके. According to section 196, such adoption will be considered as if the act was done with the authority of the principal. अब जो भी previous भी acts थे related to this rent agreement will is come into the existence as a valid agreement. ठीक है? जो भी adoption था before when this X come to know about these all the things, तब से ही ये चीज considered होगा and it will be done with the authority of the principal. Okay? It also lays down that ratification may be expressed or implied. ये express भी हो सकता है, implied भी हो सकता है. कैसे? Implied कैसे? जो उसने Y ने 10,000 रुपीज उसको सेंड कर दिया, उसने मान लिया. ठीक है? तो that is implied. उसने कुछ बोला नहीं, बस उसने accept कर लिया. So that is implied. And expressed how? जैसे उसने जाकर बोला, ठीक है, I willing to ratify this act. Okay? So this is through express, written or through verbal. So this is the example. So what are the requisites of a valid ratification? The act must have done on the behalf of identifiable principal. वो principal जो है वो exist करना चाहिए. ऐसे नहीं कि किसी भी मरे हुए इंसान या किसी भी unsound या कि incompetent person के behalf में आप कर रहे हैं. So that person must be, the principal must be identifiable. ठीक है? Next is at the time of making the contract by the agent. Well, that principle must be in existence. He must have also the contractual capacity. If he is a minor, then that ratification can't be attained. Okay. Next is the act must be capable of ratification. ऐसा होना चाहिए जो act किया है वो ratification करने लायक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो जो agreement है that is void of initio, that is कोई forged सिग्नेचर किया गया है या कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं. ठीक है? जो रेंट दिया है वो दैट इज फॉर इलीगल एक्टिविटी, फॉर सम गैम्बलिंग पर्पस, फॉर सम टेररिज्म पर्पस. तो वो दैट अग्रीमेंट्स इज ऑब्वियसली वॉइड ऑफ इनिशियो एंड दैट अग्रीमेंट्स कैन नॉट बी रैटिफाइड. सो इन ऑर्डर टू बी रैटिफाइड, रैटिफिकेशन बाय एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, द एक्ट मस्ट बी कैपेबल ऑफ रैटिफिकेशन. ओके. All transaction must be ratified. पूरा ट्रांजैक्शन रेटिफाई करना होगा. कोई पार्ट उसका रेटिफाई कर सकते हैं और आपका जितना बेनिफिट हो रहा है उतना रेटिफाई कर रहे हैं, बाकी आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं. दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है? द होल एक्ट हैव टू बी रेटिफाइड. अब वो जो एक्स है वो ये नहीं बोल सकता है कि मैं अब 10,000 रुपीज के बदले आपको 2 रूम्स दूंगा इंस्टेड ऑफ 3 रूम्स. द होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रेटिफाइड. मतलब 3 रूम्स विद 10,000 रुपीज. These all the things should be ratified, not a partial thing. Okay. Principal must have knowledge of all material facts of the act to be ratified. अब जब वो ratification हो रहा है तब principal को each and every facts पता होना चाहिए which is to be ratified. जो भी defects है, जो भी information है related to that act, that should be communicated to the principal. Okay. Next is ratification must be in place with a reasonable time. एक रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए रैटिफिकेशन. ठीक है? where the principal ratifies the act after the expiry of a reasonable time, it will not be effective. Next is ratification should be not cause loss to the third party. ऐसा कोई एक्ट नहीं होना चाहिए जिसके वजह से जो थर्ड पार्टी है दैट इज जेड ऐसा रैटिफिकेशन ना करे कि उसको कोई प्रॉब्लम हो. ठीक है? should not result in termination of any right or interest of the third party.
जो राइट्स है थर्ड पार्टी के, उसके इंटरेस्ट को कोई हानि नहीं पहुंचना चाहिए. सो देयर शुड बी नॉट एनी कॉज लॉस टू द थर्ड पार्टी. ठीक है. A holds a lease from B, terminable on 3 months notice. C, an authorized person, unauthorized person gives notice of termination to A. The notice cannot be ratified by B so as it to be binding on A. Okay. Act to be ratified must be within the authority of the principal. जो भी ratify कर रहे हैं वो principal की authority में होना चाहिए. That which had the ultra vires. Ultra vires मतलब which has legal capacity in terms of law. ठीक है. So that should be applied. वैसा होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि principal की authority में ही नहीं है. Next is ratification must has a retrospective effect. Means it should be related back to the original date. Ratification whole concept is means subsequent adoption of the previous act. ठीक है. जो previously किया गया है उसी पर हम ratify कर सकते हैं. तो obviously ratification have a retrospective effect. मतलब ये it should be relates back to the original date of the contract. It means that agencies comes into existence from the date of the act of the agent and not from the time of ratification of the act by the principal. इसका मतलब ये है, for example, ये जुलाई में इसने X ने Y को बोला आप मेरा रूम मेरा प्रॉपर्टी इन गोवा यू कैन यूज. और जो Y है उसने जो रेंट है वो सितंबर में Z को दिया. ठीक है. रूम सितंबर में दिया. अब प्रिंसिपल को पता चला नेक्स्ट ईयर February में. ठीक है. So now if X is ratifying this whole act, then this contract of agency will come into existence from the September only. ठीक है. जब से ratify हो रहा है, जिस टाइम से ये contract आया है उस टाइम से ratify होगा, उस डेट से ratify होगा, not अभी वाले डेट से. ठीक है. मतलब जब पता चला प्रिंसिपल को तब से नहीं, back to the date जब से ये act start हुआ तब से ये ratification it will come into existence. ठीक है. So this is all about ratification. Okay. I hope you have already gone through all the examples, all the topics. जो है जो delegation है, delegation of authority मतलब सब agent आप appoint कर सकते हैं. That can be express contract of principal, implied consent of the principal. नेचर ऑफ द एजेंसी, अगर एजेंसी ऐसी है कि सब एजेंट अपॉइंट करना ही पड़ेगा उस हिसाब से आप कर रहे हैं, या फिर आप कस्टम कर रहे, कस्टम्स ऑफ ट्रेड कर रहे, वेयर यू हैव टू अपॉइंट अ सब एजेंट, और थ्रू मिनिस्ट्रियल एक्ट्स और थ्रू अनफोर्सड इमरजेंसीज. लाइक अगर एक्स ने वाई को एजेंसी चलाने के लिए बोला है इन अनदर सिटी और कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, एज अ रिजल्ट X can't communicate, that agent can't communicate to the principal and he has to appoint a sub-agent. In that unforeseen emergencies, this sub-agent can be come into existence. ठीक है. So these are all the sub-agent कैसे हो सकता है. ठीक है. Sub-agent कौन होता है? He is a person employed by acting under the control of original agent in the business of agency. एजेंट के अंडर सब एजेंट होता है जो कि एजेंट ओरिजिनल एजेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी के कंट्रोल में होता है. ठीक है. What is the relationship between sub-agent and principal? Just go through once. It is not so important, but just go through once. Okay. Important is obviously what I have told in the last class. What is the duties and rights of agent and the principal? ठीक है. Very easy. I have already told you in the previous class. ठीक है. So if you have any doubts related to contract of agency, just tell me. Otherwise, I will start doing next unit, that is Sales of Goods Act. Start studying. My suggestion is that good morning, a very good morning to everyone. I have published the Google link. मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी गूगल ड्राइव में दे दिया है. Yes, that can sue Y as well if वो रैटिफिकेशन नहीं होता है और तो फिर Z Y को sue कर सकता है क्योंकि वो एक मिसरिप्रेजेंटेशन किया था उसने. So at that sense
Z can sue Y. No, ratification doesn't mean the act which has already done by agent without authority. Ratification is subsequent adoption of the previous act done by anyone. ठीक है, वो agent के द्वारा भी हो सकता है, खुद के द्वारा भी हो सकता है, किसी और third person के द्वारा भी हो सकता है. Ratification simply means जो भी पूरा पिछले आगे पीछे जो act हो चुका है उसको मैं अभी मान रहा हूँ. ठीक है, जिस केस में जैसे इस एग्जाम्पल में Y ने ऑलरेडी Z को रेंट में दे दिया था, X को पता नहीं था. जब X को पता चला वो अग्री हुआ, ठीक है आप 3 रूम्स लीजिए फॉर 10,000 रुपीज. जो अग्रीमेंट पहले बना था उसी अग्रीमेंट को वो सब्सिक्वेंट अडॉप्ट कर रहा है, दैट इज रैटिफिकेशन. ठीक है, इम्प्लाइड मींस ओरल नहीं, इम्प्लाइड मींस आपके जेस्चर से पता चल रहा है. ठीक है, आपके एक्शन से पता चल रहा है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो आप बताना चाहते हैं वो दैट इज इम्प्लाइड. ठीक है, सो इम्प्लाइड डजंट मींस ओरल. Oral or written both comes under the express contract. I have told you about the different types of contracts in the first day first class. Okay? Executory, executed contract. उस टाइम मैंने कहा था कि अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि सब्सिक्वेंट यूनिट्स में यही चीज काम आएगी. अब हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे, उसमें भी एक्सिक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आएगा. जब तक मैं डाउट्स क्लियर कर रही हूँ, जस्ट ओपन दैट पीडीएफ. वो पीडीएफ खोल के एक्सिक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो पढ़िए, ताकि अभी आपको समझ में आए जब मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाऊंगी. सो ऑलवेज रिवाइज व्हेन आई एम टीचिंग. ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन एग्जाम्स जब देने जाएंगे तब आप डिसएडवांटेजेस उसमें आ जाएंगे. सो ऑलवेज ट्राई टू बी इन पेस विद मी, राइट. पढ़ते रहिए. Yes, I will provide some question papers at the end of the classes. ठीक है, गूगल ड्राइव में भी आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. मैं एक क्वेश्चन पेपर आपको सेंड कर दूंगी. ठीक है, सो आई थिंक इट्स ऑल क्लियर अबाउट द एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. सो दिस ब्रिंग्स with the end of the unit 2. Now we will start with our unit 3, which is Sale of Goods Act 1930. ठीक है, ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स का ही पार्ट था. ठीक है, इट इज अ वेरी ओल्ड पार्ट ऑफ मर्केंटाइल लॉ एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1962. तो उसका पार्ट था, लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि उसको उससे 1862 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट उससे उसको निकाल दिया गया. क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, दिस होल्ड्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो एसेंशियल्स है, दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, आपके पार्टीज इन्वॉल्व होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होनी चाहिए, वो सब तो होगा ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, बट इससे अलावा बहुत चीजें होती है. ठीक है, which we will read subsequently. Okay, so this comes into force on 1st July 1930. और पहले जब 1930 में आया उसका नाम था इंडियन सेल्स गुड्स, द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. बट दिस इंडियन वर्ड, द इंडियन वर्ड हैज बीन रिमूव्ड on 22nd September 1963 and as a result it has become only the Sale of Goods Act 1930. Okay, so ये जो Sales of Goods Act है ये आपको simply समझना पड़ेगा कि this only deals with the movable goods, not immovable goods. ठीक है, जैसे हमने प्लेज में किया था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में भी किस पर कौन से गुड्स यूज हमने वहां पर देखा था, प्लेजिंग कैन ओनली बी डन ऑन मूवेबल गुड्स. सिमिलरली इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दिस डीलिंग इज ओनली बी डन विद मूवेबल गुड्स. अब मूवेबल गुड्स में भी कुछ इंक्लूड्स है, कुछ एक्सक्लूड्स है. ठीक है, अब मूवेबल गुड्स में इंक्लूड्स कौन है? द ओल्ड रेयर एंटीक कॉइन्स, जो पुराने कॉइन्स है जो कि हम अब एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, जिसकी अभी मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, एक्सचेंज मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, उन सबको हम गुड्स में कंट्रीब्यूट करेंगे, गुड्स में कंसिडर करेंगे. दैट ओल्ड रेयर एंटीक कॉइन्स आर द मूवेबल गुड्स. नेक्स्ट इज मूवेबल प्रॉपर्टी. जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है लाइक कार, these all are comes under this movable goods.
नेक्स्ट इज स्टॉक्स एंड शेयर्स। आपके जो स्टॉक्स है, शेयर सर्टिफिकेट्स है, दीज ऑल आर कम्स अंडर दिस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसके अलावा जो ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रास है, और एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड which is agreed to be cut before the sale, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक लैंड है 10 हेक्टायर्स का और उस लैंड में 15 मैंगो ट्रीज, 20 लीची ट्रीज और फॉर एग्जाम्पल 5 रोज प्लांट्स है, ठीक है, और टी फूड प्लांट्स है। अब अगर मैं इस इमूवेबल गुड को अगर मैं बेच रही हूँ, सो दैट इज नॉट कम्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बट इफ बिफोर सेलिंग आई हैव अग्रीड दैट कि जो ऊपर जो लगे हुए हैं ट्रीज, उन ट्रीज को मैं कट करके अगर मैं सेल कर रही हूँ, जो मटेरियल है, जो ट्री मैंगो प्लांट्स है, लीची प्लांट्स है, ट्री फूड्स है, आफ्टर कटिंग दीज कम्स अंडर द परव्यू ऑफ मूवेबल गुड्स, ठीक है। अगर वो लैंड के साथ अटैच्ड है और वैसे ही सेल हो रहा है, आई एम रिपीटिंग, अगर लैंड के साथ अटैच्ड है और वैसे ही सेल हो रहा है तो दैट इज इमूवेबल गुड्स। बट इफ इट इज कट before the sale of that land, then it will be considered under the movable goods and it comes under the purview of Sale of Goods Act 1930, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंक्लूड होते हैं मूवेबल गुड्स में? वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क से, कॉपीराइट से, ऑल इंटेंजिबल एसेट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द मूवेबल गुड्स, ठीक है। अब एक्सक्लूडेड क्या होते हैं? एक्सक्लूड्स ऑल द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज मनी। जो मनी है दैट इज अ मूवेबल गुड बट इट यूज्ड फॉर द एक्सचेंज, ठीक है। सो वो एक हमारे ट्रांजैक्शंस करने का एक जरिया है। सो मनी कांट बी कम अंडर द मूवेबल गुड्स। नेक्स्ट इज एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स आर द promissory notes, so these are not comes under the this movable goods, ये जो purview of sales of goods act है, इनके under these three doesn't come, okay। So this is all about the sales of goods act, ठीक है। अब sales of goods act basically आपको समझ में आ ही रहा होगा, it is very simple to say। जैसे एक सेलर है, वो एक बायर को अपना सामान बेच रहा है। कौन सा सामान, कौन सा गुड्स? इट इज मूवेबल गुड्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड that that Sale of Goods Act comes under the purview of only deals with the movable goods, not immovable goods, ठीक है। So एक seller दूसरे buyer को अपने goods which is movable goods sale कर रहा है, and this sale can be of these goods can be of two types. This sale that can be a sale or agreement to sale, ठीक है। What is sale? What is agreement to sale? We will come in later thing, ठीक है। And this is very important topic in your syllabus. What is sale and what is agreement to sale and its difference. सेल मतलब अभी इमीडिएटली जो सेल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, एक्स वाई को सेल कर रहा है इमीडिएटली, दैट इज अ सेल। बट इफ दे अग्री टू सेल ऑन अ फ्यूचर डेट, दैट इज अ अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। इन डिटेल्स हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में जो सेलर बायर को जो गुड्स, जो मूवेबल गुड्स सेल कर रहा है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। Just remember this verse, it is transfer of ownership, not transfer of possession. जो seller है, he should be the owner of that goods. ऐसा नहीं सिर्फ वो उसके पास पोजीशन हो। पोजीशन तो एक प्लेजी के पास भी होता है, ठीक है, एक बेलर के पास भी, बेली के पास भी होता है। तो सो दिस पोजीशन इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। वो ना पोजीशन नहीं होता, इट्स नॉट अ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, इट इज ओनली ट्रांसफर ऑफ ownership, ठीक है। You have to know this. This is the owner transfer of ownership. अब in exchange of this, what buyer will give seller? The buyer will give seller a price. What kind of price? Monetary consideration, ठीक है। यहाँ पर कोई kind consideration हम consider नहीं करते हैं। barter exchange हो जाएगा, वो barter system हो जाएगा। अगर अनाज के बदले चावल ले रहे हैं, that is a barter system। लेकिन अनाज के बदले हम चावल ले रहे हैं और साथ में कुछ और पैसे भी दे रहे हैं, तो दैट इज कम्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मतलब स्मॉल अमाउंट भी हो लेकिन मॉनेटरी कंसिडरेशन होना चाहिए, मनी का एक्सचेंज होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। अभी तक आप इतना समझे हैं, ओके।
अब ये जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, दिस कैन आल्सो अंडर कैटेगराइज अंडर टू थिंग्स, दैट इज जनरल ओनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स, एंड अनदर इज स्पेशल ओनरशिप और व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स। ठीक है, अब ये जो ओनरशिप है दो टाइप के होते हैं, ये हम समझा। अब जो जनरल ओनरशिप है ये क्या होता है? जनरल ओनरशिप मतलब जो नॉर्मल ओनरशिप है, जो आप एक सेलर को, बायर को आप जो सेल करें, जिसका आपके पास ओनरशिप है, वो आप एक दूसरे बायर को सेल करें। फॉर एग्जांपल कोई पेरिशेबल गुड्स है, नॉन पेरिशेबल गुड्स है, कोई स्पेसिफिक गुड्स है, कोई एफएमजीसी का गुड्स है, कोई कार है, ठीक है, कोई शेयर्स है, दैट स्पेसिफिक थिंग यू आर selling, you are giving to the buyer, selling with a monetary consideration. Okay, this is a general ownership. All which we will study will come under the general ownership. Another thing is special ownership. ठीक है, स्पेशल ओनरशिप क्या होता है? हमने जैसे जब हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज करा था, ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में क्या हुआ था कि ए ने बी को अपना एक सामान दिया था और बी ने एक इन एक्सचेंज लोन दिया था ए को। ठीक है, याद आ रहा है आपको? अब अगर ए ने डिफॉल्ट किया, ठीक है, उन्होंने वो जो लोन है वो पे नहीं किया, तो बी के पास वो राइट था कि वो जो सामान उसने प्लेज किया है, जो गुड्स उसने प्लेज किया है, दैट इज मूवेबल गुड्स जो उसने प्लेज किया है, ही कैन सेल दैट so that he can recover his loan amount, right? So this loan amount जो उसने सेल किया, वो जो मूवेबल गुड्स को उसने जो सेल किया, that comes under the purview of this special ownership. ठीक है, ये जो स्पेशल ओनरशिप है ये हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर नहीं आता है। ये जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये सिर्फ जनरल ओनरशिप के अंडर ही आता है। ठीक है, जो जनरल ओनरशिप होगा, जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स होगा, these all comes under the sales of goods act 1930. ठीक है, स्पेशल ओनरशिप comes under only pledge, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है उसमें आता है। ठीक है, so what we have concluded that this sale of goods act deals with general property in goods and not special property in goods. Another things, it doesn't deals in mortgage or pledge. Mortgage and pledge के बीच में मैंने डिफरेंस बताया था। Mortgage is of immovable property and pledge is of movable property and all the concepts remain same. ठीक है, आपके सिलेबस में contract of pledge है। Okay, all about in brief, in general, सारा sales of goods act क्या होता है मैंने बता दिया है। ठीक है, now let's book. Okay, कि बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। अब आपको बुकिश लैंग्वेज समझने में थोड़ा ज्यादा इजी होगा। ठीक है, till now if you have any doubt just write it down. जो मैं पीडीएफ सेंड कर रही हूँ, पीडीएफ के एंड में बहुत सारे केस स्टडीज दिए हुए हैं, छोटे छोटे केस स्टडीज दिए, जिससे आपको समझने में बहुत इजी होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट के भी मैं कुछ केस स्टडीज दे दूंगी। ठीक है, उससे आपको वो चीजें समझने में और ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट सानिया, आई विल पोस्ट दैट इन द गूगल ड्राइव। आई कांट प्रॉमिस कि मैं आज कल में कर दूंगी, बट within 1-2 weeks में I can post that questions in your Google Drive. ठीक है, तो Google Drive थोड़ा 3-4 दिन बाद चेक करते रहना। ओके, I will complete all the remaining course in the remaining 6 classes. ठीक है, जो बाकी यूनिट्स है वो सारे theoretical है, that is LLP and ITs। आज उसमें कुछ टर्म्स समझाने के लिए है, that I will make you understand about that। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ थियोरेटिकल है। मेन आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये यूनिट्स है, यही मोस्टली समझाने के लिए। ठीक है, बाकी इज वेरी थियोरेटिकल, आप अगर बुक से भी पढ़ेंगे तब भी आप लिख सकते हैं। तो वो जो 4th and 5th यूनिट है ना, वो एज अ टीचर मैं आपको ये बोलूँगी, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, आपने 12th भी ऑनलाइन दिया था, 11th भी ऑलमोस्ट आपने ऑनलाइन दिया था, तो बहुत दिन बाद आप ऑफलाइन एग्जाम देंगे। सो माय सजेशन इज टू, इफ यू वांट टू फेच मार्क्स, सो वो यूनिट 4 और 5 तो हरगिज मत छोड़िएगा। ठीक है, यूनिट 4 and 5 को अच्छे से पढ़ लीजिए, दैट इज वेरी थ्योरेटिकल, यू कैन लर्न दैट। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो मैंने पढ़ाया है, जैसे मैंने पढ़ाया है, जस्ट फोकस ऑन दैट। कौन से सेक्शन में है, क्या है, आई विल ऑल डिस्क्राइब यू। I
posted a link, published a link given by आकाश, ठीक है. उस लिंक को आप खोलिए, आपके बाकी फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट्स ने ओपन किया है, वो ओपन हो रहा है लिंक, सो यू कैन डू दैट. Yes, transfer of property means transfer of ownership. Special ownership, I guess I have explained very well. Just revise it from the recordings, Babita. If you have any doubt related to a specific word or specific term, just write it down, Babita. Okay. Now let's come to the bookish language of this contract of sale. ठीक है, ये क्या है definition of contract of sale? ये जो है ये section 4 of subsection I के अंदर आता है. According to section 4 of subsection I of the Act of a contract of sale क्या है? It is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. जो seller है वो transfer कर रहा है या फिर agree to transfer कर रहा है क्या? Property in goods, ownership in goods to the buyer for a price. अब I don't think so. I think say कि seller कौन होता है, buyer कौन होता है, आपको पता है. Buyer who buys a good, seller who sells a good. ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अपने ओनरशिप को ट्रांसफर कर रहे हैं. किस चीज का ओनरशिप? मूवेबल गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं. कौन? सेलर बायर को. कैसे? ही इज सेलिंग और अग्री टू सेल एट अ प्राइस. Okay, so this is the definition of contract of sale, which is very important. Okay, अब जो सेल है वो एब्सोल्यूट हो सकता है या फिर कंडीशनल हो सकता है. एब्सोल्यूट मतलब जैसा कहाँ है वैसा ही. फॉर एग्जाम्पल, on 1st July, A agrees to sell computer to B for 30,000 with the intention of transferring the ownership to him immediately. B agrees to pay the price on 4th July. It is a sale or absolute contract. मतलब this is अभी immediate हो रहा है on an immediate basis. ठीक है, within 3-4 days. That is the immediate. That is absolute contract. Okay, so it is a sale or it is an absolute contract. Okay, next is the contract of sale can be a conditional sale. ठीक है, अब conditional sale क्या होता है? Where there is some conditions attached to them. ठीक है, which is termed as an agreement to sell, where the transfer of property in goods is to be take place at a future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled. The contract is called an agreement to sell or conditional contract. ठीक है, so हम sell को क्या कह सकते हैं? हम sell को absolute sale कह सकते हैं, और हम agreement to sale को क्या कह सकते हैं? हम agreement to sale को हम conditional सेल भी कह सकते हैं, या कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी कहा जा सकता है. ओके, सो दिस सेल हैज बीन कम अंडर द एक्ट ऑफ 4 सबसेक्शन ऑफ 3 एंड एग्रीमेंट टू सेल आल्सो हैज बीन गिवन इन सेक्शन 4 सबसेक्शन ऑफ 3. ठीक है, सो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है समझ गए कि आपने इमीडिएट बेसिस में जो सेल किया, दैट इज इमीडिएट बेसिस में आपने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किया, दैट इज सेल फॉर अ प्राइस. That is a cash sale. This is an absolute contract or a particular sale. But when you are agreeing for a future time or subject to some conditions thereafter to be fulfilled, that contract will be termed as agreement to sell or conditional contract. Okay? For example, आप एक शोरूम में गए जहाँ पर आपने एक होंडा सिटी कार देखा. ठीक है, और आपने बोला कि अभी आप एडवांस रखिए 1 लाख रुपीज, और जब डिलीवर हो जाएगा तब मैं आपको फुल अमाउंट दूंगा. सो दैट इज एन अग्रीमेंट टू सेल, दैट इज अ फ्यूचर डेट. ओके, या फिर आप किसी फर्नीचर शॉप में गए. ठीक है, आपने बोला कि मुझे बेड ऐसे स्पेसिफिकेशन का चाहिए. ठीक है, बट जो शॉपकीपर है उसने कहा कि मेरे पास ऐसे स्पेसिफिकेशन का नहीं है, बट I will make for you, मैं एक बनाकर आपको दूंगा. So that is a agreement to sell, that he is promises to sell it on a future date. ठीक है, so that is a agreement to sell. Okay. So now when does a agreement to sell becomes a sale? An agreement to sell becomes a sale when the time elapses or the conditions are fulfilled subject to which the property and goods to be transferred. जब जैसे उस होंडा सिटी केस में जैसे ही वो गुड्स आप तक डिलीवर हो गया और आपने अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट आपने उसको पे कर दिया, दैट इज बिकम्स अ सेल फ्रॉम अग्रीमेंट टू सेल. ठीक है,
या फिर वो टाइम elapse हो गया। फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर ने बोला कि मैं विद इन 1 मंथ आपको ये बेड इस स्पेसिफिकेशन का बनाकर दूंगा, और 1 मंथ खत्म हो गया, the time elapses but he haven't made the bed, so now this agreement to sale also comes at end, ठीक है। या फिर उसने बनाकर दे दिया, उस बायर को बेच दिया, तो दैट इज अ सेल फ्रॉम अग्रीमेंट टू सेल, ओके। ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। एसेंशियल्स क्या है? फर्स्ट एसेंशियल है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज, 2 पार्टीज होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है और द इंडियन गुड्स एक्ट जो है, इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है इट इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल। सो ऑल द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी देयर। जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स है वो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। जैसे वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, देन बस सेल में क्या होना चाहिए, मॉनेटरी कंसिडरेशन होना चाहिए, देन यू हैव लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, then there must be more at least 2 parties, so these are all of the essentials of valid contract will be same. So obviously there must be at least 2 parties. A contract of sale is a bilateral contract. To execute a sale there must be at least 2 parties. कौन कौन? एक बायर और एक सेलर, ठीक है। तो एक पर्सन खुद को ही अपना सामान नहीं बेच सकता है, ठीक है। जैसे बहुत एक क्लासिक केस लॉ है जहां पर एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया है और जो सरप्लस असेट्स है उन्होंने आपस में बांट लिया, ठीक है। अब जो सेल्स टैक्स ऑफिसर है वो इस जो सेल हुआ, मतलब सेल टैक्स ऑफिसर को लगा ये सेल हुआ, क्यों? उन्हें आपस में ही डिवाइड कर लिया। सो तो वो सेल पर टैक्स लगाना चाह रहे थे, बट जो कोर्ट है उसने ऑब्जर्व किया कि ये एक सेल नहीं है, क्योंकि वो जॉइंट ओनर्स थे। वो पार्टनर्स कौन थे? जॉइंट ओनर्स ऑफ गुड्स थे। सो दे कुड नॉट बी बोथ सेलर्स एंड बायर्स। वो खुद ही ओनर होके खुद को ही बेच नहीं सकते हैं। सो देयर विल बी no money consideration moved between the parties, and hence the sales tax officer cannot charge or levy a tax on this, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल था ही नहीं, ठीक है। वो उसके ओनर थे और उन्होंने खुद ही आपस में डिवाइड कर लिया, सो दिस इज नॉट। बट हाँ, इसी केस में अगर पार्टनरशिप फर्म की जगह पर ये एक कंपनी होता, ठीक है, अगर ये कंपनी होता तब टैक्स लेवी कर सकते हैं। क्यों? आपने पढ़ा होगा जो कंपनी है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट। जो एक सेपरेट लीगल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। अगर उनके जो ओनर्स है या फिर उनके जो बाकी कंपनी मेंबर्स है वो आपस में अगर डिवाइड कर लेते हैं तब उसमें टैक्स लेवी होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। क्यों? क्योंकि ओनर जो कंपनी है वो पर्सन से डिस्टिंक्ट है। सो हियर द टैक्स ऑफिसर कैन levy a tax on as this is a sale, okay, is that understandable? Okay, now next is a contract of sale may be express or implied. express भी हो सकता है, implied भी हो सकता है। implied contract क्या होता है, express contract क्या होता है, वो मैंने यूनिट 1 में आपको पढ़ा दिया है, right? So this sale can be in written or by word of mouth, or partly in writing, partly in words of mouth, or by implied conduct of the parties. किसी भी तरीके से ये contract of sale हो सकता है, okay? Next of a valid contract of sale is mode of formation of contract of sale. Section 5 of the Act provides that following modes of formation of the contract of sale. क्या modes हो सकते हैं? First, the delivery of goods may be made immediately, but the price of the goods may be paid at a future date. आपने बायर ने सेलर को जो सामान है वो इमीडिएट बेसिस में दे दिया, लेकिन जो प्राइस है वो आप जो बायर है वो लेटर डेट पर दे रहा है, दैट इज क्रेडिट सेल पर दे रहा है, ठीक है। Next is the delivery of goods may be made at some future date, but the price of the goods is paid immediately, ठीक है। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई फर्नीचर खरीदने जाते हैं और आपने पूरा फुल अमाउंट एडवांस कर दिया, फुल अमाउंट आपने दे दिया, लेकिन आपका सामान लेटर ऑन पॉलिशिंग करके 10 डेज बाद आपके घर पर डिलीवर होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नेक्स्ट इज देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस। आपने साथ ही साथ सामान लिया और साथ ही साथ आपको पैसे आपने दिए, ठीक है, जो आप नॉर्मली किसी शॉप में जाकर करते हैं, कोई ग्रोसरी खरीदते हैं या कोई भी सामान खरीदते हैं, जो आप इमीडिएट प्राइस देते हैं और सामान आपको मिल जाता है। दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल व्हिच इज लेड अंडर द सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट।
Next is there may be delivery of goods or payment of price or both to be made in installments. जैसे आप इंस्टॉलमेंट्स में ही सामान आ रहे हैं आपके पास और पैसे भी आप इंस्टॉलमेंट्स में ही दे रहे हैं, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ठीक है, क्या क्या हुआ कि आप सामान आपके पास आ गया, पैसे आपने लेटर ऑन दिया, या फिर आपने पैसे पहले दिए सामान बाद में आया, या दोनों ही आपने एक साथ किया, या फिर दोनों ही इंस्टॉलमेंट्स में आ रहे हैं. So these four are the mode of information of contractors. Okay. Next is to transfer the property in goods. According to section 2 of subsection 11 of the Act, property means the general property in goods and not merely a special property. जनरल प्रॉपर्टी क्या होता है, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है, स्टार्टिंग में ही मैंने समझा दिया था, राइट. सो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो वैलिड एसेंशियल जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, वो एक जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स में डील होना चाहिए, स्पेशल प्रॉपर्टी में नहीं होना चाहिए. ठीक है, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होता है, आई हैव एक्सप्लेन वेरी वेल. सो दैट वो जो प्लेजी वाला चीज है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर डील नहीं करता ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किस पे डील करता है, ओनली ऑन जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स. ठीक है. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी गुड्स. गुड्स होना चाहिए, ठीक है, सामान होना चाहिए. दैट इज मे बी एग्जिस्टिंग गुड्स और फ्यूचर गुड्स, लेकिन सामान होना चाहिए. ठीक है, मनी, एक्शनेबल क्लेम्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आते हैं. क्या इंक्लूड है क्या एक्सक्लूड है वो भी मैंने आपको बता दिया. ठीक है. नेक्स्ट इज प्राइस इज अ कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. प्राइस होना चाहिए, विच ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन यू कि मॉनेटरी अमाउंट होना चाहिए, मॉनेटरी कंसिडरेशन होना चाहिए. ठीक है. प्राइस किसको कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट टेक प्लेस इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस. मतलब जो आप मनी से एक्सचेंज करते हैं, गुड्स के एक्सचेंज आप मनी देते हैं, दैट इज अ प्राइस. आप बार्टर सिस्टम नहीं कर सकते हैं, सामान के बदले सामान नहीं दे सकते. हाँ, ये कर सकते हैं कि कुछ सामान और कुछ पैसे वैसे कर सकते हैं, पार्टली ऑन पेमेंट एंड पार्टली ऑन गुड्स. This becomes a sale, but the whole transactions cannot be on of exchange of goods. Exchange of goods नहीं हो सकता है, goods के बदले आपको थोड़ा ना थोड़ा पैसा आपको देना ही पड़ेगा. So this is all about this another essentials of a valid contract. केस लॉ है एक एल्ड्रिच वर्सेस जॉनसन का ऑफ 1957. A agreed to exchange with B 100 quarters of barley at ₹300 per quarter for 52 bullocks valued at 1000 per bullock and pay the differences in cash. ये जो डिफरेंस है वो कैश में पे करती है, तो ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाएगा, क्योंकि पार्टली मनी में है और पार्टली इन गुड्स में है. ठीक है. एसेंशियल्स है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एसेंशियल्स है एज पर द सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑल द एलिमेंट्स विल बी अंडर दिस वैलिड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. ठीक है. सो वो जो सेक्शन 10 का आईसीए का जो मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट या सेकेंड क्लासेस में, मैंने बोला था तब एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि अब वो अगर आपको याद होगा तो आपको एसेंशियल्स ऑफ प्लेज, एसेंशियल्स ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, या एसेंशियल्स ऑफ गारंटी और इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट हो, या एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सब में आपके वही एसेंशियल्स ही आते हैं. सो यू कैन राइट अबाउट दैट. इसके अलावा हर एक कॉन्ट्रैक्ट के थोड़े एक्स्ट्रा एसेंशियल्स भी है, जैसे इसमें एक्स्ट्रा एसेंशियल्स था कि जो कंसिडरेशन है वो मॉनेटरी टर्म्स में होना कंपलसरी है. ठीक है. सो दीस काइंड ऑफ एसेंशियल्स विल बी ऐड ऑन दैट. अब आते हैं सेल एंड एन अग्रीमेंट टू सेल. ठीक है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं. ठीक है. सो सेल क्या होता है, सेल है प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली, इमीडिएट ट्रांसफर होता है. अग्रीमेंट टू सेल में क्या है, फ्यूचर डेट पर होता है. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है सेल का, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डू यू रिमेंबर? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहां ऑल द ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ बोथ द पार्टीज हैव बीन फुलफिल्ड. ठीक है. दोनों पार्टीज के जो आपके ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशंस है, वो फुलफिल हो चुकी है. और एग्जीक्यूटरी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जहां पर किसी एक पार्टी के जो ऑब्लिगेशंस है, जो आपके ड्यूटीज है, वो फुलफिल नहीं हुए हैं. सो एन अग्रीमेंट टू सेल इज अ एग्जीक्यूटरी और अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, व्हेयरएज अ सेल इज अ एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. अभी तक कोई डाउट्स है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर? एग्जाम में
दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, केस लॉ भी आता है, आपका थ्योरेटिकल भी आता है। इनफैक्ट 2 लाइन केस लॉ के आने के बाद 2 लाइन आपके थ्योरेटिकल आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा केस लॉ हो गया रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, ठीक है, कि एग्जिट माइनर है, क्या वो आ सकता है कॉन्ट्रैक्चुअल, उसमें क्यों नहीं आ सकता, व्हाई, कौन कौन आ सकता है, ऐसे करके एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है, ठीक है। या फिर सीधा सीधा आपका पूरा एक बड़ा केस लॉ बन जाएगा और में, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपके इंटर चॉइस होते हैं। सो केस लॉस और थ्योरेटिकल दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। जब मैं यूनिट 4 एंड 5 कराऊंगी तब मैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगी, ठीक है। टीएम मींस ट्रेडमार्क्स, ठीक है, टीएम ट्रेडमार्क्स। आपने देखा होगा किसी चीज के ऊपर टीएम लिखा होता है तो दैट इज ट्रेडमार्क, ठीक है, वो उसके ऊपर उन्होंने ट्रेडमार्क दिया हुआ है। इज दैट क्लियर विद यू? क्लीनिंग तानिया, ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दैट। Yes, it is an executory contract. Agreement to sell is an executory contract and sale is an executed contract. ठीक है, executory contract क्या होते हैं? I have already explained, right? Rajni, today is your first class. Why you have to be there for the first class? कोई बात नहीं, अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझिए, ठीक है, सिलेबस को उसी अकॉर्डिंग करिए। 3rd, 4th, 5th यूनिट पहले कर लीजिए, उसके बाद वी विल कम बैक टू द 1st एंड 2nd यूनिट। अगर टाइम बचा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। ऑफलाइन वीडियो का यू हैव टू आस्क द सिविल अथॉरिटीज अबाउट दैट। लावण्य आस्क्ड, मैम जैसे एक कंपनी में बहुत से पार्टनरशिप होते हैं तो इस केस में क्या दे विल बी अ सेलर और बायर? पार्टनर्स होते हैं, द केस आप समझे नहीं। केस ये था कि जो पार्टनर्स है आफ्टर डिसोल्यूशन, जब पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर जाती है, जब डिसॉल्व हो जाती है, तब जो एक्सेस सरप्लस एसेट्स थे उन्होंने आपस में डिवाइड कर लिया। अब क्योंकि वही ओनर होते हैं और वही वो जो एसेट्स है उनके ओनर्स कौन होते हैं? पार्टनर्स ही होते हैं। वी हैव लर्न दिस इन द पार्टनरशिप एक्ट, राइट? सो अब उसको हम सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वही ओनर है, उन्होंने खुद ही आपस में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। वेयरएज इन अ कंपनी और उसके जो बाकी ओनर्स होते हैं या फिर आपके प्रोमोटर्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। जो एमडीज है या मैनेजर पोजीशन में वो डिस्टिंक्ट होते हैं, क्योंकि कंपनी के अपने खुद की एक आइडेंटिटी होती है, राइट? सो उस केस में अगर सरप्लस एसेट्स आपस में डिवाइड कर ले रहे मेंबर्स, वहां पर वो सेल होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो दो डिस्टिंक्ट लोगों के बीच में हो रहा है, मतलब दो पार्टीज वहां इन्वॉल्व है, लेकिन इन पार्टनरशिप वही ओनर है और वही सेलर है। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। दिस इज द केस लावण्य, ओके। द क्रेडिट सेल रिगार्डिंग व्हाट? Yes, both the parties has promised their obligations and duties, that is executed contract. In a contract of sale, we own a manufacturing factory and we have to take our amount for the another party. But then the parties say that he is not available to pay due to some issues. So he say that if you buy a fan from us, so that we can pay you half of the amount, is it comes to the contract of sale. आप ने क्या किया, एकदम बुक के लास्ट के कोई क्वेश्चन आपने उठाकर यहाँ डाल दिया। ऐसा नहीं है, पहले आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा पढ़िए, पूरा समझिए। मैं अभी 2 क्लासेस और लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन में हम आएंगे। इन द नेक्स्ट क्लास और इन द सब्सिक्वेंट क्लास जब ये खत्म हो जाएगा, देन यू पुट दिस क्वेश्चन, या फिर आपको पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद समझ में आ जाएगा। दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, जस्ट डोंट जंप टू द कंक्लूजन, राइट? सो पहले समझिए चीजें क्या है, देन गो टू द केस लॉस। इन ऑल द चैप्टर्स, ऑल द सब्सिक्वेंट यूनिट्स, यही आपको करना है। पहले केसेस समझिए, आप पूरे चैप्टर को समझिए क्या है, ठीक है। अभी बहुत चीजें बची है, कंडीशंस बची है, वारंटीज बची है, बहुत चीजें हैं, उनको समझने के बाद ही यू कैन गो दिस केसेस, ठीक है लावण्या? I will come back to this in the when you end. I will discuss all these topics in the class. ठीक, तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। Thank you मुस्कान, thank you। How can I say that South Campus open है कि नहीं? मैं भी आपको ये सब तो
सिविल अथॉरिटी से पूछना पड़ेगा, राइट? ओके, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, सो आई एम पुटिंग दिस इन माय हैंड. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. ठीक है, अब हमने नेचर पढ़ लिया. नाउ वी विल कम टू द सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, अब सब्जेक्ट मैटर क्या है कि जो स्पेसिफिक गुड्स एंड असर्टेन गुड्स कंस्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल. अब ये सब्जेक्ट मैटर्स पढ़ने से पहले वी हैव टू क्लासिफाई द गुड्स. अब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में आते हैं, फिर वी विल बैक टू द सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल. ठीक है, अब ये जो गुड्स है इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटीजेंट गुड्स. ठीक है, अब ये जो एग्जिस्टिंग गुड्स है इसके भी 3 कैटेगरीज है. फर्स्ट इज स्पेसिफिक गुड्स, सर्टेन गुड्स एंड अनसर्टेन गुड्स. ठीक है, सो अनसर्टेन गुड्स, सर्टेन गुड्स एंड स्पेसिफिक गुड्स under existing goods, and another part of goods is future goods and contingent goods. So these types of goods are classified in the sales of goods act. ठीक है, अब ये existing goods क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो goods है ना, ये this classification of goods is not in your syllabus, but आगे आप जो भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ये goods की चीजें बहुत important है. जैसे अभी सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल पढ़ रहे थे, which is in your syllabus and which is very important. लेकिन यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट मैटर आ गया कि किस चीज का सब्जेक्ट मैटर हो, किस टाइप के गुड्स को हम सेल में कंसिडर करेंगे और किस टाइप के गुड्स को हम अग्रीमेंट टू सेल में क्लासिफाई करेंगे. तो इसीलिए गुड्स किस तरीके से क्लासिफाई होता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो फर्स्ट इज एग्जिस्टिंग गुड्स. एग्जिस्टिंग गुड्स कौन होते हैं? जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी अस्तित्व है, जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो कि ओन कर रहे हैं एंड पोजेस्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जो गुड्स है वो रियली में एग्जिस्ट कर रही है. जैसे हम किसी दुकान में जा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि एक शैम्पू का बॉटल दीजिए, वो शैम्पू का बॉटल एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? सो दिस इज द एग्जिस्टिंग गुड्स एंड उसका जो पोजीशन है एंड द ओनरशिप वो किसके पास है? शॉपकीपर के पास है, द सेलर के पास ही है एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो इसको क्या कहेंगे हम? एग्जिस्टिंग गुड्स. ठीक है, वेरी सिंपल, राइट? Generally, seller is the owner of the goods. Sometimes goods are possessed by the seller but not owned, and these include the sale of a pledgee or a mercantile agent. अब ये हमारे पर्व्यू में नहीं है, अगर प्लेजी के पास से पोजेस कर रहा है या मर्केंटाइल एजेंट, this not doesn't comes into, लेकिन exist होना चाहिए. What is your main consideration in this thing is वो physically exist होना चाहिए first, second वो owned by the seller होना चाहिए, and the third possessed by the seller होना चाहिए. ठीक है, और कब होना चाहिए? At the time of the formation of the contract of sale. This is called as existing goods. Okay, अभी जो existing goods है, this is further classified in 3 categories, subcategories, that is specific goods, ascertain goods and unascertain goods. Specific goods कौन से goods होते हैं? Specific goods are the goods which are identified and agreed upon at the time of making of contract of sale. जिस goods को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और आपने जब सेल करने का जो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, तब आपने अग्रीड किया at the time of making the contract of sale is called specific goods. ठीक है, जैसे आप यहाँ पर तो एग्जाम्पल है होंडा सिटी का, वो आप खुद ही पढ़ सकते हैं. लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं एक गेहूं के शॉप में गई, ठीक है, मैं गेहूं लेने के दुकान में गई और वहाँ पर गेहूं के शॉप में गई, वहाँ मुझे गेहूं लेना है. ठीक है, अब आप सबको पता है कि गेहूं के डिफरेंट वैरायटीज होते हैं. ठीक है, अब डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल राइस में ही चली गई मैं. ठीक है, अभी गेहूं तो कोई पिसवाता नहीं है, सब रेडीमेड आटा ही लेते हैं मोस्टली, लेकिन राइस तो सबको ही लेना होता है. अब मैं एक राइस के शॉप में गई. अब मुझे शॉपकीपर ने डिफरेंट वैरायटीज ऑफ राइस दिखाया. ठीक है, अब मैंने सारे राइस ग्रैन्यूल्स को वे किया, मैंने उसकी क्वालिटी चेक किया, कोई मोटे दाने के, कोई लंबेदार दाने के, मेरा जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से मैंने उनको दिखाया एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कि मैंने आइडेंटिफाई करके दिखाया कि आई वांट दिस क्वालिटी, दिस टाइप ऑफ राइस, एंड जो राइस है ही द सेलर हैज पोजेस्ड, वो पोजेस भी कर रहा है और ओनर भी है, और मैंने उनको आइडेंटिफाई करके दिखाया कि यही चीज मुझे, यही राइस की क्वालिटी मुझे चाहिए. सो दैट इज अ स्पेसिफिक गुड. ओके, नेक्स्ट इज असर्टेन गुड्स. असर्टेन गुड्स मतलब
जो कि आइडेंटिफाइड है लेकिन अग्रीड भी है, लेकिन upon the subsequent to the formation of the contract of sale. The goods which are identified and agreed upon subsequent to the formation of contract of sale are known as ascertain goods. Ascertain goods मतलब after the formation of the contract of sale. मतलब ये हो रहा है कि अब मैंने बता दिया कि ये मुझे चाहिए, ठीक है, लेकिन अभी हमारे बीच में वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, आइडेंटिफाइड है, वी हैव अग्रीड अपॉन, बट ऑन अ सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन कि जब मैं आपको पैसे दूंगा तब आप मुझे देंगे, सो दैट इज अ सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन. बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस स्पेसिफिक गुड्स एंड दिस असर्टेन गुड्स इज दैट दोनों ही आइडेंटिफाइड है, लेकिन जो स्पेसिफिक गुड्स है दैट इज एट द टाइम ऑफ द making of contract and a certain goods is on a subsequent to the formation of the contract of sale. बस इतना सा चीजें आपको समझना है और इतना सा चीजें आपको याद रखना है, सिंपल, इसके अलावा कुछ नहीं. इट इज नॉट ऑन विल कम ऑन योर एग्जाम, बट other things you have to understand कि specific goods और certain goods में क्या डिफरेंस है, कि आ भी सकता है एग्जाम पे. आई एम नॉट 100% श्योर कि नहीं आएगा बिकॉज आई एम नॉट अ पेपर सेटर, ठीक है, आ भी सकता है, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, बट इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है. जैसे अग्रीमेंट एंड सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल का ही पार्ट है ये, सो मे बी क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स आ सकता है. डिफरेंसेस स्पेसिफिक गुड्स में एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड formation of the contract. This is the written or general on the time of the formation of the contract of sale. मैंने बोला कि बस मुझे एक बॉडी ऑफ करके नहीं दिया कि मुझे कौन सा चाहिए. कि मुझे I haven't identified, so this is a, ठीक है. So this is the basic examples, different examples दिए हैं. You can just go through this once. I will post this PDF after the class in the Google Drive, ठीक है. By the evening मैं भेज दूंगी, ठीक है. Next classification is ये जो था हमारा ये जो था जो existing ascertain and existing goods के अंडर आता है हमारा specific ascertain and uncertain goods. जैसे specific goods था, अब next is future goods. Future goods क्या होता है? The goods to be manufactured or produced or acquired by the seller after making the contract. Contract बनने के बाद, ठीक है? So that is a future goods. Goods that do not exist at the time of the formation of the contract and they exist but not yet acquired by the seller. फॉर एग्जाम्पल आप एक बुक शॉप में गए, बुक शॉप में आपने कहा कि मुझे इस पब्लिकेशन का ये वाला बुक चाहिए, ठीक है. सो उन्होंने कहा कि हाँ ये बुक एग्जिस्ट तो करती है लेकिन हमारे पास नहीं है, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा विद इन 1 वीक, ठीक है. सो दिस इज फ्यूचर गुड्स. बिकॉज अभी वो हुआ नहीं, फ्यूचर डेट में होने वाला है, सो देयर कैन ओनली बी एन अग्रीमेंट टू सेल. Contingent contracts happen. मतलब ये एक फ्यूचर गुड का ही टाइप है, लेकिन सेंस कि आपने बायर देंगे, ठीक है. तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक काऊ का मिल्क चाहिए, अगर काऊ ने मिल्क दिया 20 लीटर्स उस दिन तो आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन अ कंटीजेंसीज व्हिच मे बी हैपन और मे नॉट हैपन. सो इट इज अ टाइप ऑफ फ्यूचर गुड्स and therefore a contract of sale of contingent goods operates as an agreement to sale and not a sale, ठीक है. So this is about the types of goods. Okay, let me finish this sale and agreement to sale, ठीक है. तो सब्जेक्ट मैटर सेल में क्या है, स्पेसिफिक गुड्स होने चाहिए एज वेल एज असर्टेन गुड्स होने चाहिए व्हिच मेक्स इट अ सेल. एंड अग्रीमेंट टू सेल में जब हम जो कि हम पढ़ चुके हैं फ्यूचर
हो सकता है, जो सब्जेक्ट मैटर है गुड्स का वो फ्यूचर गुड्स हो सकते हैं, या फिर कंटीजेंट गुड्स हो सकते हैं, या फिर असर्टेन गुड्स हो सकते हैं, अनअसर्टेन गुड्स हो सकते हैं. दीज ऑल सब्जेक्ट मैटर ऑफ एन अग्रीमेंट टू सेल. ठीक है. अब नेचर ऑफ राइट्स क्या है सेल में? बायर रिक्वायर्स जस्ट इन रिम. जस्ट इन रिम मतलब राइट्स अगेंस्ट द होल है, मतलब उसके पास वो राइट है, जो बायर के पास वो राइट है टू अक्वायर दैट प्रोडक्ट when he has that ownership. Okay. Next is in agreement to sell, buyer acquires just in personam, that is rights against an individual. अगर इंडिविजुअल ने आपको वो सामान नहीं दिया है, so आपको उस इंसान के अगेंस्ट आपका राइट है, नॉट ऑन अ राइट ऑन द होल वर्ल्ड. ठीक है. सो जस्ट राइट रिमेंबर दिस, इट इज अ जस्ट इन पर्सन एंड से इज जस्ट इन ड्रीम. ओके. नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ लॉस. In sale, it is the buyer has to bear the risk of loss even if the goods may be in the possession of the seller. For example, आपने एक for example कार खरीदा आपने. ठीक है. आपने पैसे भी पे कर दिए, उन्होंने आपको कार का पोजीशन भी दे दिया, सब कुछ हो गया. ठीक है. दैट इज अ सेल. सब कुछ इमीडिएट बेसिस पे हुआ, लेकिन आपने कहा कि मेरे गैरेज में बना नहीं है, मैं आपसे 7 दिन में वो वापस लूंगा. 7 दिन बाद आकर मैं एक कार लेकर जाऊंगा. ठीक है. अब आपने सेल कर दिया है, सेलर ने सेल कर दिया आपको कार, अब उसकी पोजीशन में है, लेकिन अगर वो कार डैमेज होता है, वहां कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, या फिर वो कार के ऊपर कोई सामान गिर गया, तो सारे लॉस का रिस्क कौन बियर करेगा? सेलर बायर बियर करेगा. क्यों? क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो हो गया था, पोजीशन सेलर के पास क्यों ना हो. ठीक है. लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो कि सेल है वो हो चुका था. सो ऑल द लॉस, रिस्क ऑफ लॉस विल बी बियर बाय द बायर. ओके. इन agreement to sell, the seller has to bear the risk of loss even if the goods may be in possession of the buyer. ठीक है. यहाँ पर जो सेलर है उसके पास सारा रिस्क है, क्योंकि अभी तक सेल नहीं हुआ है. देयर इज अ एग्रीमेंट टू सेल. ठीक है. नेक्स्ट इज बायर्स फेलियर टू द पे द प्राइस. इन केस ऑफ बायर्स फेलियर टू पे द प्राइस, सेलर इज एंटाइटल्ड टू sue the buyer for the recovery of the price. आपने सामान ले लिया और आपने प्राइस दिया नहीं. ठीक है. आपने क्रेडिट सेल पर दिया था बायर ने, फिर भी आपने अमाउंट पे नहीं किया, तो the seller has every right, he is entitled to sue the buyer for the recovery of the price. Okay. But in case in agreement to sale, if the buyer's failures to pay the price, seller is entitled only for the damages and not for the price. For example, जैसे मैंने आपको स्पेसिफिकेशन दिया था कि ये बेड ऐसे बनाना है, और एक अग्रीमेंट टू सेल हुआ था कि एक फ्यूचर गुड्स पर डील हो रहा है कि वो फ्यूचर गुड्स आपके पास आएगा. ठीक है. सो अगर मैंने वो गुड्स लिया नहीं, तो वो पूरे अमाउंट मुझे नहीं देना पड़ेगा. ठीक है. लेकिन वो सेल करके और उस एक्चुअल प्राइस में जो डिफरेंस होगा वो लॉस मुझे बेयर करना पड़ेगा. किसको? बायर को बेयर करना पड़ेगा. ठीक है. ओनली द डैमेजेस द बायर इन द अग्रीमेंट of sale. The seller's failure to deliver the goods, the buyer can recover the goods to the court of law. अगर आपने पैसे दे दिया, सेल हो गई है, जैसे उस होंडा सिटी वाले केस में आपने पैसे दे दिए, लेकिन वो होंडा सिटी आपको दे नहीं रहा है. ठीक है. सो नाउ यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि वो आपको सामान नहीं दे रहा, सेल हो गया है, बट द बायर इज द सेलर इज नॉट गिविंग यू द और नॉट डिलीवरिंग द गुड्स टू द बायर. ओके. In case of seller's failure to the delivery the goods, the buyer can only recover damages to the court of law. दोनों ही केस में अगर बायर का फेलियर हो या सेलर का फेलियर हो, इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, आप सिर्फ एंटाइटल्ड है फॉर द डैमेजेस. ठीक है. अगर बायर का फेलियर है तो डैमेजेस कैन बी एंटाइटल्ड बाय द सेलर, और अगर सेलर का फेलियर है तो बायर कैन ओनली रिकवर द डैमेजेस इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल. ठीक है. सिंपल थिंग, इतना ही आपको याद रखना है, बाकी चीज याद नहीं रखनी है. नेक्स्ट इज सेलर हैज नो राइट टू रीसेल द गुड्स इवन इफ where the goods are in his possession after sale. अब जो होंडा सिटी वाला केस था, ठीक है, सेल हो गया, इमीडिएट सेल हो गया है, पोजीशन बायर सेलर के पास ही है. ठीक है. बायर ने कहा मैं गराज ठीक करके एक हफ्ते में लेकर जाऊंगा. अब सेलर के पास कोई राइट नहीं बचा है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो चुका है. अब वो सेलर उसको रीसेल नहीं कर सकता है, तो उसके पास पोजीशन है, बट ही हैज नो राइट टू रीसेल द गुड्स. बट सेलर कैन रीसेल द गुड्स एंड कन्वे अ गुड टाइटल टू अ थर्ड पार्टी. जो सेलर है इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल, वहां पर वो रीसेल कर सकता है गुड्स को. ठीक है. तो ओरिजिनल बायर कैन रिकवर द डैमेजेस फॉर द ब्रीच ओनली.
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था बेड बनाने के लिए ये स्पेसिफिकेशन का, और आपने मुझे ना बेचकर किसी और को बेच दिया। अब मैं आपसे सिर्फ ये जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है उसका डैमेजेस रिकवर कर सकती हूँ इन अग्रीमेंट टू सेल। ओके, नेक्स्ट इज ऑफिशियल रिसीवर और assignee of the seller is under obligation to deliver the goods to the buyer because ownership lies with him. जो ऑफिशियल रिसीवर है और जो असाइनी है ऑफ द सेलर इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर बिकॉज ओनरशिप लाइज विद हिम। किसके पास ओनरशिप है? बायर के पास, सेल में। ओके, बट इन अग्रीमेंट टू सेल द बायर कैन नॉट रिकवर द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द seller, but where he has paid the price, he can only get repayable dividend from the property of the seller. It means कि अगर इंसॉल्वेंसी हो जाता है सेलर का, ठीक है, तो फिर वही चीज बस आप एक अमाउंट आप ले सकते हैं, रिलेटेबल डिविडेंड ले सकते हैं फ्रॉम दैट मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। आपको ये समझना, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया है तो ऑफिशियल रिसीवर और असाइनी ऑफ द सेलर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। आपने अमाउंट पे कर दिया है, ठीक है। इन दिस केस ऑफ होंडा सिटी वाले में, सेल में हम सोच रहे हैं कि आपने अमाउंट पे कर दिया है लेकिन आपका पोजीशन जो है वो बायर के सेलर के पास ही है। इन दैट केस अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो फिर भी आपको गुड्स डिलीवर हो जाएगा, क्यों? सेल हो चुका है। लेकिन अग्रीमेंट टू सेल में क्या है कि अगर वो सेलर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो आप रिकवर कर सकते हैं सिर्फ एक डिविडेंड, जो आपके डैमेजेस हुए हैं उसी के आप at the time of agreement to sell। ठीक है, is it simple? अगर buyer insolvent हो जाता है और seller has to deliver the goods to the official receiver of the assignee of the buyer where the goods are in his possession। अब buyer लेकिन पोजीशन सेलर के पास है, लेकिन बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है। इन दैट केस आल्सो सेलर हैज टू डिलीवर द गुड्स, क्योंकि अमाउंट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तो बायर ने पे कर दिया है। तो नाउ seller has to deliver the goods to the official receiver or the assignee of the buyer। In an agreement to sell, where buyer has not paid the price, seller is under no obligation to deliver the goods to the official receiver or assignee of the buyer। सिंपल सा फंडा ये है अग्रीमेंट ऑफ सेल में। अगर आपका अमाउंट आपने दिया ही नहीं है, अभी सिर्फ एक अग्रीमेंट हुआ है कि फिर फ्यूचर गुड्स में आपको मिलेगा इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन, इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस कंसिडरेशन, मॉनेटरी कंसिडरेशन में होगा, लेकिन अभी तक आपने कोई प्राइस पे नहीं किया है, तो जो सेलर है ही हैज नो ऑब्लिगेशन टू गिव द गुड्स, टू असाइन द गुड्स टू द बायर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, so if you have any doubts just post it here। This brings us to the end of this unit, this chapter basically, not unit। अभी हमारे और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, that is conditions and warranties, जो इसी के अंडर आते हैं, which we will discuss in the next class। So till now if you have any doubt, so just tell me। वेलकम एवरीवन। गूगल ड्राइव लिंक में ही मिल जाएगी। ठीक है, yes Ravana, this will consider under the contract of sale। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में थोड़ा सा भी अमाउंट हो इन एक्सचेंज होना ही चाहिए। ठीक है, सो इट इज कम्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल एंड सेल का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इज इंग्लिश वर्ड, राइट? सेल आप कौन सा पास्ट टेंस है, कौन सा फ्यूचर टेंस है, इस पर थोड़ा देखते हैं। Hello, I guess my video briefly stopped, sorry for that। If a seller works under his owner, then can we say
he has position to sell although he has not the ownership। गुनगुन, आपके क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है। अगर वो सेलर है तो वो हाउ ही इज अंडर द ओनर, ठीक है, तो फिर वो मर्केंटाइल एजेंट होगा, ठीक है। अगर मर्केंटाइल एजेंट है तो वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का लॉ उसमें एप्लीकेबल हो रहा होगा, ठीक है। सो अगर किसी प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला है कि यू कैन बाय, यू कैन सेल, यू कैन गिव इट टू अनदर पर्सन, सो दिस इज अंडर द sales of contract act and in exchange of that you will get some monetary consideration, ठीक है। पेपर will be of 75 marks and then it will be converted into 100 marks, ऐसा भी हो सकता है, या फिर पेपर पूरा 100 marks का होगा और उसी अकॉर्डिंग मार्क्स उसी में असाइन होंगे, कुछ भी हो सकता है। So that's all for today, ठीक है। I will posted this PDF to the Google Drive link, वहाँ से access कर लीजिएगा, just go through once. If you have any doubts, just mail me or you can give your doubts through the Teams app, ठीक है। That's all for today. We will meet on the coming Monday, okay। That's all for today. Thank you and have a nice day.